রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কালাইনে বিশাল হিন্দু সম্মেলন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে শনিবার ৩রা জানুয়ারি কালাইন কলেজ রোড স্থিত বিসর্জন ঘাট কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে সমগ্র দিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কালাইন গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক এক বিশাল হিন্দু সম্মেলন। সকাল ৯:৩০ মহিলাদের কলস যাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ভারত মাতার পূজা। সকাল 11 ঘটিকায় বন্দে মাতারম সঙ্গীতের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং উপস্থিত সকলে ভারত মাতার প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান বৌদ্ধিক দাতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ সুনীল মোহালতি। এছাড়াও এদিন বৌদ্ধিক প্রদান করেন কালাইন জগন্নাথ মন্দিরের প্রভুজি মায়াপুর চন্দ্রোদয় দাস, দক্ষিণ আসাম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক গৌরাঙ্গ রায়, রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতির দক্ষিণ আসাম প্রান্তের প্রচার প্রমুখ মুক্তা দাস এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরেশ চন্দ্রপাল। বৌদ্ধিক দাতাদের উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মাননা প্রদান করেন আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জগৎচন্দ্র তামুলি, হারাচন্দ্র দাস ও রূপম রায়। বৌদ্ধিক পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ভাষা ও জনগোষ্ঠীর শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ধামাইল নৃত্য, বিহু নৃত্য ও ডিমাসা নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যশিল্পীরা, যা উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। পরবর্তীতে শপথ গ্রহণ পর্বে উপস্থিত সকলে পবিত্র হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কলা ও ভাষা সংরক্ষণ এবং হিন্দু সমাজকে সুসংহত ও সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সমগ্র এলাকাবাসী ও সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, সংবাদ বাংলা। আমি সজ্ঞানে সুস্থ মনে শ্রী শ্রী পরমেশ্বর ও নিজের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে আমার নিজের পবিত্র হিন্দু ধর্ম হিন্দু সংস্কৃতি আমার কৃষ্টি কলা ভাষা ভূষা সংরক্ষণ করে হিন্দু সমাজকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করব। কোন প্রকারের জাতিগত ভাষাগত সম্প্রদায়গত ও আঞ্চলিকতাগত সংকীর্ণ ভেদভাব আমার অন্তরে পোষণ করব না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি হিন্দু সমাজের ঐক্য সাধনে সচেষ্ট থাকব এবং স্বদেশ ও হিন্দু সমাজের সেবায় সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকব। भारत की सनातन जो इतिहास है वो केवल लिखित इतिहास, रिटन हिस्ट्री, ये 5000 वर्ष का है। हम जो श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ करते हैं, आप में से कोई बता सकता है क्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता को कहां गाए थे? कौन बताएगा? कुरुक्षेत्र में। कौन बताए? बोलिए, कहां गाया गया था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब दोनों पांडव और कौरव दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, उन दोनों के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो कि मोहग्रसित हो गया था, उसके हाथ में दोबारा गांडीव धनु उठाने के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गीता को गाया गया था। दुनिया का जो सबसे ज्ञान संपदा है, दुनिया का सबसे जो ज्ञान संपदा है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड में ही गाया गया था। और उसको आज से 5000
162 वर्ष पूर्व इसको गाया गया था, भगवान कृष्ण ने गाए थे। कितने वर्ष पूर्व मैंने बोला? 5162। ध्यान करिए, हम हिंदू हैं, हिंदू शास्त्रों के बारे में भी, उसके इतिहास के बारे में भी ध्यान करना चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि भगवत गीता तो ऐसे ही कोई ग्रंथ है। नहीं, इसकी भी इतिहास है। 5162 ईयर्स एगो श्रीमद् भगवत गीता गाया गया। और ठीक कलियुग प्रारंभ होने के 35 वर्ष पहले, 35 ईयर्स पहले भगवत गीता को गाया गया था। यानी कि कलियुगाब्द जो है, आप लोग काल गणना को जानते होंगे, 5127 वर्ष से ही कलियुग प्रारंभ हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता को जो गाया गया था, कलियुग में अलग अलग जो झंझावात है, अलग अलग जो द्वंद्व है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे निराकरण हेतु, उस समस्याओं में ध्रुव तारा जैसे अंधकार आकाश में रास्ता दिखाता है पथिक को। आजकल के बच्चे ध्रुव तारा समझ नहीं पाएंगे। जीपीएस आप समझ रहे हैं? जीपीएस जैसे जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, ऐसे ही कलियुग में समस्त द्वंद्व, समस्त भ्रांतियों से रास्ता निकालने के लिए श्रीमद् भगवत गीता को कलियुग के 35 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने दिए थे। और महाभारत लड़ाई, उसका भी उतनी उम्र है जितनी गीता की उम्र है, यानी कि 5162। 5162 से लेकर के 2500 वर्ष तक, 2500 वर्ष तक भारत में कोई बड़ी युद्ध भारत के इतिहास में दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद अगर कोई आक्रमण, बाहर का आक्रमण हुआ है, वो 550 बीसी, यानी कि आज से 2500 वर्ष पहले पहला विदेशी आक्रमण हुआ, जो ईरान का साइरस करके एक आक्रमणकारी आया। और उस आक्रमण के बाद ग्रीकों का आक्रमण हुआ। साइरस को तो हमारे वीरों ने भगा दिए यहां से, लेकिन उसके बाद जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर को भी हरा करके वापस भेज दिए। वो अपना जो मूल स्थान ग्रीक तक पहुंच नहीं पाया। उसकी समाधि आज भी आधे रास्ते में मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, वहां अलेक्जेंड्रिया शहर में उसकी समाधि है। यानी कि अलेक्जेंडर जो विश्व विजय करने का स्वप्न लेकर के आया था, उसको भी हमारा भारत ने वापस भेज दिया पराजित करते हुए। तो ग्रीकों के बादशाह हुण, कुषाण, इन सब का आक्रमण जारी रहा। 550 बीसी से लेकर के 712 एडी तक, लगभग आप मानो कितने वर्ष, लगभग 1200 वर्षों तक ये आक्रमण चला। लेकिन ये जो शक, हुण, तात, कुषाण, ये सब आए, इन सब को भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में पचाने की, डाइजेशन करने की, हजम करने की जो हाजमी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इन सबको हम लोग विदेशी आक्रांतों को क्या बना दिए? क्या बना दिए? हिंदू बना दिए। इनकी ये सही उत्तर दिए, ताली बजाइए एक बार। सभी को हम हिंदू बना दिए, बहुत सही उत्तर दिए। हम सभी को इस सनातन प्रवाह के साथ मिला लिए। लेकिन 712 एडी के बाद ध्यान से सुनिए, जो आक्रमण हुआ मोहम्मद मीर कासिम के द्वारा, वह मोहम्मद मीर कासिम के बाद जो आक्रमण लगभग 800-900 वर्षों तक चला, यह आक्रमण थोड़ा दूसरे प्रकार का आक्रमण था। पहले का जो आक्रमण होता था, शक, हुण, कुषाण जो आक्रमण करते थे, हमारे जो मातृशक्ति बैठी है ना, इन मातृशक्तियों के तरफ नहीं देखता था। सैनिक के बीच में लड़ाई होती थी, राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी। जो हार गया वो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो 712 मोहम्मद मीर कासिम के बाद जो आक्रमण हुआ, उनका सबसे पहला टारगेट था मातृ समाज इस भारत में जो है। इन्होंने मातृ समाज को देखने का तरीका अलग था। इन्होंने मातृ समाज को, हम जैसे काली माता के रूप में पूजा करते हैं, दुर्गा माता के रूप में पूजा करते हैं, गौरांगना, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता के रूप में हम पूजा करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की
सारे महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है सब माता लोगों को दे दिए। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाए भगवान ब्रह्मा ने? दुर्गा माता को। बोलो दुर्गा माता की जय। डिफेंस मिनिस्ट्री सुरक्षा मंत्री किसको बनाए भगवान ब्रह्मा ने? बोलो सर एक बार। क्या मां दुर्गा का नाम लेने के लिए डर रहे हैं क्या? मातृशक्ति बैठी है। कौन डिफेंस मिनिस्ट्री बने? कौन डिफेंस मिनिस्टर बना? दुर्गा माता। दुर्गा माता। फिनांस मिनिस्ट्री अर्थ का मंत्री कौन बनी? लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये मातृशक्ति लक्ष्मी माता लोग बैठी है, लेकिन चुपचाप क्यों बैठी है? एक बार बोलो सभी जो चुपचाप बैठी है, लक्ष्मी माता कभी घर में आएंगी, आप लोग आशीर्वाद देंगी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बहुत अच्छा, अभी लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। और एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्री किसको दिए? सरस्वती माता। माता सरस्वती की। विद्यार्थी लोग जोर से बोलेंगे माता सरस्वती की जय। सारे इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री ने किसको दे दी? हमारे मातृ समाज को दे दी भगवान ब्रह्मा ने। ये जो है भारत की महत्वपूर्ण जो संस्कृति है, ये संस्कृति को 712 के बाद जो आया क्रांताओं का जो झुंड, वो समझ नहीं पाया। मातृ समाज को केवल बच्चा पैदा करके उनके धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए, उनकी कम्युनिटी की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने का मशीन जैसा उसको समझना शुरू कर दिया। इसलिए उनके साथ अगर भारत में अगर ये बाह्य आक्रमण 712 के बाद सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ है, कोई सबसे ज्यादा अगर आक्रांत हुआ है, मेरी मातृशक्ति को सबसे ज्यादा टारगेट किए थे उन्होंने।